नाम बताओ। My name is Kavya Vivek Madhvi. काव्या Vivek Madhvi. विवेक पापा का नाम है ना? हाँ. काव्या विवेक Madhvi. मडवी M-A-D-H A-V-I. माधवी हाँ, but it looks like Madhvi, but it is Madhvi. मडवी ओके एच साइलेंट है Yeah. मडवी 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 ओके। तो काव्या आप अपने को डिफाइन करो 2 4 5 10 सेंटेंस में। जैसे मानो कोई हम आपको रोकेंगे नहीं जब आप फुल स्टॉप करोगे। Language. So, कुछ भी जैसे लैंग्वेज एनीथिंग जो तुम्हारे को मन करे, हिंदी या इंग्लिश ना मराठी। yeah, I can say in English, right? हाँ चलेगा। Okay. So, my name is Kavya Vivek Madhvi. I'm 18 years old and currently I'm pursuing undergraduation course in Axiom Business School. And I have 3 family members including me. I stay in Panvel. My hobbies are listening music and You stay in Panvel. yeah. So my hobbies are listening music and drawing. And my weaknesses are I'm a social connector. I can communicate well, and I'm a open-minded person. कम्युनिकेशन को तो आपका अच्छा लग रहा है, बोलने में साफ है। But how it is weakness? Oh, yeah. आपने वीकनेस बोला, क्या बोला? Yeah, I said weakness. strengths. Okay, my weaknesses are I'm a impatient person, and sometimes I do overthink. Overthinking. Yeah, that much weaknesses still I have observed about me till now. ओवरथिंकिंग के 2 एग्जांपल दो जो आपको बहुत तकलीफ हुई हो यार, ये क्या तो सोच रही है। Yeah, I had like recently my friend said that I said something wrong about her and someone said this to her. I said okay, but I didn't reply. I thought, what did I said? I recalled everything. I didn't found what I said that. Something like that. So I was thinking it very much. Then I called her. Did I said something which felt bad to you? So she said, no, that wasn't. I know she was saying wrong. I know you won't do this. But I felt so I said this. So I said, okay, that was me thinking very much. That. आपकी एज में ये सब होता है, ये इतना बड़ा ओवरथिंकिंग मेरे हिसाब से नहीं है। कभी-कभी क्या हो जाता है ना, what is हाँ, trying but to say? जहाँ करना होता है वहाँ नहीं करती, गलत जगह पे कर लेती। हाँ, फिर भी कभी आपको लगता है तो थोड़ा सा आप गूगल पे, आप लोग तो गूगल पढ़ते ही हैं ये बच्चे, आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़िए। तो क्या बोलते हैं एंजाइटी, हाँ, ज्यादा नहीं, अदरवाइज फिर परेशान हो जाओ। रीड लिटिल अबाउट एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। उससे भी अच्छा आपको एक टॉपिक बताता हूँ, ये सब भी छोड़ दो, माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ो। अभी जैसे अब ये आपके सामने बॉटल पानी, बस खाली पानी सोचो। खाना खाते टाइम क्या करते हो? टीवी चलाते हो या मोबाइल साथ में रखते हो, क्या करते हो? सबको टीवी देखने की आदत है, तो टीवी होता है। ना टीवी ना मोबाइल, खाना दाल बड़ी अच्छी हाँ, लगती है, जो काम करो उस पे फोकस करो। हाँ, उस पे टोटल फोकस हो, इतना डीप फोकस कि और कुछ हो भी रहा हो बाजू में, वो शाहरुख खान ऐसे निकल गया, अरे कौन सा मुझे नहीं पता, ऐसा असंभव है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ट्राई करना, रास्ता वही नहीं, ट्राई भी नहीं, वो होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी जब ऐसा सोचोगे तो आप जहाँ भी रहोगे, you learn to be in the present moment. मेडिटेशन भी तो यही है। जो बड़ी बड़ी बातें ऋषि मुनि करते हैं। Kevin, I have got a question for you. Yes. What is your planning in life? What do you want to do? Till now, what I had decided about is to take this graduation course later to MBA and do good work in HR department. This is still now. Further, I haven't decided. I'm still deciding. आपको क्या लगता है 5 साल बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे? I can't say. I might be still studying if I did MBA and all. Otherwise, I'll look for having a good job. At least 10 पैसे तो दे दूँ घर वालों को. Yes. So your aim is to grow in life on a decent amount of money. Yeah. So that you can contribute to your family also. Yeah. Okay. So you are doing graduation contribute to family. So graduation you are doing in BSc in data science and AI. So you know this is a booming subject in market. So after doing this BSc in data science and AI,
you want to switch over to I want a to, general yeah. subject where anybody can be in Yeah. MBA. So why do you want to switch over to MBA and work in HR? If you want to work in HR, then what type of companies where you will be like to be in HR? Exactly, I'm saying I haven't decided it that much. I'm still on the ongoing process, researching about it. So currently, I have decided that what I'm doing, let's focus it on now, because this is new subject. वैसे आप Everything बहुत is सही, new. आप जो आपने सेंटेंस बोला वो बहुत मूड पॉइंट वहीं पे है। अभी 3 साल का पीरियड है ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। आप 3 साल में कम से कम पूरा 2 साल 24 महीने हुए, बल कम से कम 20 महीने, 36 महीने का है ना स्पैन, 20 मंथ्स यू जस्ट डोंट बॉदर। अभी जो हो रहा है होने दो। हाँ, because माइंडफुलनेस के साथ उसको करो। उसके बाद आपको बहुत सारी ब्रांचेस नजर आने लगे जो आज नजर नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ अभी कंप्लीटनेस नहीं आई है ना। जो आपका पीओवी है, व्हाट वी कॉल पॉइंट ऑफ व्यू, वो अभी ब्लॉसम करने दो थोड़ा, तब आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए आई सेड कि अभी मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। एचआर भी डिसाइड मत करो, आपको मन करता है तो आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। रॉन्ग इन दिस आल्सो। नहीं, वही कह रहा हूं, एचआर क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, एचआर वाले क्या करते हैं, प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, आप पढ़ सकते हैं। सुनो, अभी लेकिन अभी फ्रीज मत करो। Okay. Since you are doing data science, okay, AI, so you can go for next stage also. Yeah, you can obviously. do your MSc, MCA. क्या पता आपको एआई में ही कुछ मजा आ जाए, आप एक्सपर्टीज बन जाए। Then you go for MBA HR, no problem. But there are many IT companies where they also need HR. So they will not hire a HR who has done BA and he has done MBA HR. They will not take him. Take her because she doesn't understand the technicality of the person. So if you have got a background of all the things, maybe you are the right choice for them, for a tech company. So nothing wrong in that if you decide it. But there are many avenues, any opportunities in BSc Data Science and AI which you should also venture. Okay. What you are most scared in life? Scared of? Most सबसे ज्यादा डर किस बात से? सबसे वही बता रही हूँ, मोस्टली फेलियर से डर लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है फेलियर से ज़्यादा डर जिस चीज़ में मैं वीक हूँ वही जाकर कर देती हूँ, मुझे उससे लगता है कि मैं क्यों किया जब मुझे पता ही नहीं करना है। इट्स लाइक आई गेट इम्पेशेंट, मैं जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ कि मुझे समझ आ रहा है कि मुझे यहाँ पे ये नहीं रिएक्ट करना, फिर भी मैं कर देती हूँ, तो बाद में बहुत रिग्रेट होता है, पता था फिर भी तूने कर दिया। क्यों करता है? तो तुमको पता है उसे कैसे रोक सकते हैं? सो आई एम ट्राइंग कि जब अभी मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ तो खुद को मिरर के सामने कंट्रोल करना, नहीं करना। हाँ, समटाइम्स कहीं भी समझ नहीं आता ना हमें क्या करूँ अभी। नहीं, वो ये I should not be discussing all the things, but I believe in some of the things like my nature. हाँ, बताइए ना। I am Aries personality. Aries personality is quite different. They talk on the face. So impatient, they want to say something immediately. They react very fast because I consider when you react very fast, that means I consider your IQ level is very high. You understand very quickly what he is trying to say. You react. Yeah, वो भी सही बात। Hey, there are many things. I know. So reacting fast is not at all wrong. Reacting something to immediately, not at all wrong. Getting irritated is sometimes, with experience you will understand that I should not get irritated. Yeah, this world goes like that. If you was at the level what I am thinking, if I expect that everybody will be working at that level, then I will not have any juniors here. Or little bit par hote. I need a junior who should have little lower IQ than me. If he is or she is more IQ than you, then she will not be working with you. We need people. So we need some people who have lower IQ. Don't worry on that. No, I tried this because now what I was more impatient and more irritating. But once my friend said कि यार तू बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, मत कर। I felt very bad, यार मेरे दोस्त भी नहीं बन पा रहे। So घर ना मैंने समझ लिया घर के बाहर कुछ भी बोले वो उनका ओपिनियन है, सुन के रख लेने का अपने पास। बस वही। एक लिमिट तक सुनना। हाँ। दो चीजें कर सकते हैं इसके लिए और आपको 100 डेज में बहुत फर्क नजर आएगा। आपको कुछ बुक रीडिंग की हैबिट है? Novels. I just started. नॉवेल्स नहीं,
Which one are you reading now? Read some self-development books. No problem. Novels. Which one you are starting now? I just ended about, it was a temporary roommate, and I'm going to read. Which book you are reading now? It was named The Temporary Roommate. The Temporary Roommate. Okay. And Who's the author? Sarah Adams. I want to read Ikigai. I'm currently. Ikigai पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है. I want to read. Kind of person for me, it's very necessary. अभी पढ़ो तो भी कोई किसी से भी 5 मिनट इकिगाई का रिव्यू पढ़ लो, उतना ही बहुत है. You must have some aim before you. यही एक लाइन की समरी है. बस. अभी जैसे मैं बहुत बीच में परेशान था, ये करूँ वो करूँ, तो मैंने डिसाइड किया I'll write 5 to 6 books in 2026. तो इसलिए डिसाइड किया मैं 100 पेजर लिखूंगा. एक किताब 400 पेज की क्यों लिखूं? I'll create small. Amazon पे आजकल बोलते हैं भी ऑडिबल्स बना लो. तो उस दिशा में मैं सोच रहा हूँ. तो अब वो मेरा इकिगाई बन गया है. Aim. You must have some compelling aim before you. वो आपकी जितनी ओवर थिंकिंग और ये अभी क्या क्या वर्ड आप यूज कर रहे थे, वो सब अपने आप डस्टबिन में निकल जाएंगे, कॉकरोच जैसे भाग जाएंगे. Maybe I have got a situation, like supposing I have got a program, you joined a company, so the team has got, you got a 5-member team, so I made you team leader. Okay, well, this job has to be delivered by 4 o'clock today. I know the job will not be over by 6 o'clock earliest, even if do as fast as possible. So now I have assigned the job, I am the boss, so you have to accept. By 4 o'clock, boss is saying 4 o'clock, I don't listen anything. 4 o'clock means 4 o'clock, not I need the things. Now you started the job and you found your some people are not motivated and अरे कुछ भी लेके आ जाता है, कुछ भी कमिटमेंट देके आ जाता है, कौन करेगा, कैसे करेंगे? तो they are not interested because they know that it cannot be possible. It is not possible. By 4 o'clock we cannot finish. डांट तो सुनना ही है. So they are not doing it. How do you motivate them to start working at least? I can say, if you know नहीं कर सकते 6 बजे तक, फिर भी अपना 100% दो, कहीं ना कहीं तक पहुंच जाओगे. जब तुम अपना पूरे मन से करोगे ना, तुम्हें अपने लिए बहुत अच्छा फील होगा. हाँ, मैंने अपना 100% दिया है, कहीं ना कहीं तो रिजल्ट मिल जाएगा. अगर मुझे पता है नहीं होने वाला, मैं अपने सर को एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, बट मुझे लगता है कि मेरे टीम मेंबर्स ने अपना 100% देना था कि मुझे पता है मैं 3 बजे तक मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, मैं उतना करके दिखाऊंगा. वो उतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. आप ये भी बोल सकते हो 80% तक कवर कर दिया, मुझे हाँ. टाइम दे दो. आई नीड सम एक्स्ट्रा टाइम बट आई हैव कवर्ड 80%. एंड इफ यू डोंट डू देन डांट तो सीवियर पढ़ने वाला. वैसे वो वैसे भी अगर पता है पढ़ने वाले, फिर भी अपना 100% दो ना. दो. ओके, वेरी गुड. एंड अभी फिर भी मानते नहीं यार. अब ये लोग को बोलते रहते हैं, अरे क्या यार ये क्या करेगा उसको. आई गेस दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि कैसे करोगे. प्रैक्टिकली बताओ, तुम कैसे उनको करोगे कि भाई वो काम में लग जाए. What are the ways you can handle them so that they all are they are with you now. You are a leader now, team leader, right? मैं उनको फिजिकली फोर्स तो नहीं कर सकते हो, डांट भी नहीं सकते हो. मैं उनको सिर्फ बता सकती हूँ कि आपको करना है. वो उनको समझना पड़ेगा कि ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है. नहीं समझ रहे हैं. If they do it well and if they complete their part, what could be their gain in whatever terms you want to explain? सॉरी. आपको ये बताना है भाई, अगर आप अपना काम सही से सही टाइम में ये अपना बेस्ट दे सकते हो, और मैं कन्विंस हूँ कि आपने अपना बेस्ट दिया है, तो दिस विल बी योर गेन. इंटरव्यू तो छोड़ो, जिंदगी में देखो यही करता, पेन कहाँ पे है और गेन कहाँ पे, इसी पे पूरी दुनिया घूम रही है. इंटरव्यू क्वेश्चन छोड़ दो. तो इफ यू फील दिस प्रोसेस कैन गिव यू पेन, आप अवॉइड करो. नहीं, अब प्रैक्टिकली बताओ. गिव यू गेन. 5 लोग हैं इधर बैठे हुए, मैं कुछ काम दिया, आप नहीं सुन रहे हैं. अभी उनको डिमोटिवेटेड हो गया, अरे क्या यार तुम लेके आ गए, तो होने वाला निकल तक नहीं होने वाला है. तुम अभी क्या कर सकते हो सो दैट जो बोलो whatever you said that is right, कि जितना 100% बेस्ट देंगे वो देंगे. देने के लिए तुम्हारा प्रैक्टिकल तुम क्या करोगे बताओ. एनीथिंग इज ओके फॉर मी. कि तुम कैसे उनको मनाओगे ताकि काम में लगे लोग आके. काम को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, कंपोनेंट्स में डाल. लेट हर से नहीं, आई एम जस्ट ट्रिगरिंग थोड़ा सा ताकि
ऑनेस्टली मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो हाँ, मुझे नहीं पता नहीं, कि क्या क्या कर सकते। कुछ नहीं है, बताओ तुम्हारे मन में जो भी आता है क्या सोच सकते हो। अभी मान लो तुम तो 2 साल बाद करोगे, एक्सपीरियंस तो कभी ना कभी करोगे ना, उधर ही करोगे, क्या करें ऐसे करो। छोटा भाई है कोई? नो सिबलिंग्स, अकेली। तो छोटा भाई को मोटिवेट कभी किया होगा, कोई काम नहीं करना चाहता है, किया होगा तो वो भी आएगा तुम्हारे दिमाग में, ऐसे भी कर सकते हैं, हटाना कैसे। छोटा छोटा मेरे माइंड में एक ही इसका सॉल्यूशन है। ये इतना पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो सर ने पूछा है। पूरा कॉर्पोरेट इसी में तो अटका हुआ है, कॉर्पोरेट इसमें लगता है काम कोई करता ही नहीं। ये काम आई हैव सीन दिस। मेरी मम्मी खुद काम करती है, हर रोज सबको कॉल करके बोलती है ये करना है सर बोल रहे। पता नहीं क्या करती है बट हाँ देखती हूँ मैं, हर किसी को कॉल करके। कैसे समझाती है, डांटती है किसको? सच में डांटती है, तू कर। कभी कभार डांटना पड़ता है बट ज्यादा नहीं डांट सकती, वो डांटेगी तो प्यार से डांटना है। तो इनको क्या करेगा, अभी मैं आउट ऑफ टॉपिक में बता रहा हूँ। चल यार चलो, ये तो कॉर्पोरेट ऑफिस है, ऑफिस भी होगा, चलो ठीक है, नहीं होगा ना, चलो चलो जाके बैठते हैं। सब अभी गुस्सा मोड पे आया, टीम मैं बता दिया, काम दे दिया, तुम लोग गुस्सा मोड पे जाके सब लोग तुम्हारा ऊपर झाड़ रहे हैं। चल ठीक है, नहीं करना मत करो, चलो बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, चलो लेके जा सकते हैं कॉफी के लिए। मूड चेंज करने के लिए कर सकता है टीम लीडर ये। चल भाई कॉफी पीते हैं, कॉफी ठीक है करते हैं। कहते ना पूरा सेटिंग को ही चेंज कर दो, फिर एक नए तरीके से सोच सकते हो, नए तरीके से बात कर सकते हो, फिर बात करो। ठीक है भाई, चल भाई मैं नहीं हूँ, तू तेरी जगह पे, तू भाई जो भी ठंडा हो जाएगा चाय पीने के बाद, पूछो तुम क्या करेगा, तुम मेरी जगह पे होता तो तू क्या करता बता, मैं वही आके भी करता हूँ। अब 15 मिनट बाद कोई नहीं बोलेगा, जाके टीम बॉस को बोल दे नहीं हो सकता। यार कितना परेशान हो रहा है, चल यार एक तो कोई बोलेगा उसमें से, चल हम तो साथ में करते हैं, कोशिश करते हैं, अरे चलो देखो कोशिश करते हैं। रियलाइज करवा के तो धीरे धीरे उनको रियलाइज कराना पड़ेगा इसको करना है। डांट नहीं सकते, डांट के निकाल नहीं सकते, निकालना है नहीं। डांटने से 2-3 बार डांटा, वो समझ लो आप बंदे को राइट ऑफ कर रहे हो, वो सीख लेगा यार, इतनी डांट खा के आराम से फिर बड़ा पाव खाएंगे। डांट की आदत जिसको सुनने की हो गई वो बेशरम हो जाता है। ये तो घर में होता है, इसका सोचना है। फादर मदर बच्चों को बहुत डांटते, कहते डांट पापा क्या 10 मिनट डांट लेंगे, उसके बाद आता हूँ खेलने, जब तक तुम लोग पाला तैयार करो। इसके बारे में सोचना, that just doesn't work। तुम स्कूल में प्रोजेक्ट किया साथ में, 5 लोगों का एक प्रोजेक्ट मिलता है, 3 लोगों को मिलता है, ये तीनों मिलके आके करोगे, किया? स्कूल में नहीं देते थे? नहीं देते थे, सब मेरे पे आ जाता था कि सब दूर दूर रहते थे ना, सो आई एम द क्लोज्ड वन, तो सब मेरे पे आ जाते थे। अल्टीमेटली सोचो, टीम लीडर जो बनते हो ना, दूसरे के काम को भी करना पड़ता है, उसको मोटिवेट कर जितना करा सकते करें, कि तुमको खुद को करना पड़ता है। क्योंकि जैसे स्कूल में जो है ना, वो भी तो सिखा रहे हैं कैसे काम करवाओगे, यू डेलीगेट द जॉब, नहीं हो पा रहा, जो कमजोर है उसको पीछे छोड़ो और सबको मोटिवेट करो कि देख भाई इस काम कर लेंगे ना, इस टाइम बॉस को बात करूंगा, अगर आप ये करने अच्छे बंदों को डेलीगेट करते हो, डेलीगेट का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, अगर आप अच्छे बंदों को डेलीगेट करते हो तो बहुत चांसेस हैं आपका काम बहुत सही से हो जाए। अगर आप इडियट्स को डेलीगेट कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी आने वाली है। इसलिए कहते हैं डेलीगेशन वहाँ वर्क करता है जहाँ आपके सबॉर्डिनेट्स में अच्छी कॉम्पिटेंसी हो और साथ साथ में अच्छी इथिक्स भी। But thing is, as a team leader, you cannot decide the competency of others. Practically, company has hired, he has given the team. तुमको 6 का टीम दिया है, उसमें गधे भी 1-2 रहेंगे। आज फिर उनको फिर डेलीगेशन में आपको उन बंदों को हटाना पड़ेगा। नहीं, हटाने से पहले फर्स्ट यू ट्राई टू टीच देम, सीखो। चलो मैं बताता हूँ, नहीं होता है, कॉर्पोरेट HR is there, tell them to give them special training on this topic, because my job is on this, so please take them for training for 10 days, at least they should understand what I am. ट्रेनिंग बहुत अच्छा टूल है वैसे सब सिचुएशन। Then still they are not doing that, still not motivated, motivate them, still not motivated, now you don't have any choice, you have to deliver. Then comes sacking or transferring to some other department, not sacking, tell them कि भाई wherever they are good, ट्रांसफर टू द अदर टीम। ये आई हैव एक्सपीरियंस कि मेरी मम्मी का एक टीममेट था, ही वाज लाइक दिस, सो उसने बहुत कंप्लेंट की थी कि एट द लास्ट शी वेंट टू HR, ये मेरी जॉब पे रिस्क डाल रहा है, आप इसको देख लो। तो HR विल ट्रांसफर देम,
Yeah. Instead of sacking him or her, HR को रिक्वेस्ट करके ट्रांसफर कर दो, टेक somebody else. Yeah. That is the corporate में तुमको इस टाइप का देंगे. Okay, चलो काव्या, it's nice talking to you. Thank you. चल, We will thank you. come up with so many things. आपको कोई हेल्प चाहिए तो बता जाओ. हाँ.